Namaskar bachcho, we are studying chapter 13 Mahatma Gandhi and National Movement. The chapter is all about the efforts of Mahatma Gandhi and the incidents which were there after the revolution of 1857, how the incidents changed and how the movements were started by Mahatma Gandhi. The story is about that only. So previous part we have seen how Mahatma Gandhi was involved in Indian politics and various movements were started by him. He wrote so many books also, and he has given the ideas of non-cooperation, satyagrah, non-violence, truth. So that was admired in all over the world. So everywhere the Gandhi's ideas were admired, and today we are going to see, as in the previous chapter we have seen the importance of Dandi March. Dandi March, when Gandhiji started a yatra from Sabarmati Ashram to Dandi, and the seashore he made a fistful salt. And what was the reason? The reason was he wanted to associate the mass in the movement. जो freedom struggle हो रहा है, जब तक हम mass को, जो poor one है, जो needy one है, उन्हें involve नहीं करते हैं, we will not get the benefit of that. So that was the main motive of him, that we have to take all of them with us. So salt was the thing which was used by each and every person, जो rich हो, poor हो, middle class हो, तो उनका क्यों ना एक ऐसा वेपन बनाया जाए जिसको हर तबके का पर्सन यूज़ कर रहा हो. तो जब हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि हर आदमी जो है, द पर्सन विल बी अवेयर अबाउट द एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसी से सब लोग अवेयर हो जाएंगे. दैट्स वाई दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड एंड द साल्ट लॉ वॉज broken. Meanwhile, he took the support from the Muslims. How? In the Khilafat movement. When the powers of Khalifa from Turkey that was taken away, then just to make him give back him power, there was a movement that was the Khilafat movement, and the two leaders were Muhammad Ali and Shaukat Ali. So Gandhiji supported that movement so that they can get the support from the Muslims also. So he said with the combined support we would be able to get the success, and we will be when we will be united, we will have the strong voice against the Britishers. So let's see the dialogues. Importance of Salt March. अगर हम Salt March जो हुआ उसकी importance को notice करते हैं तो वो क्या था, देखिए आप. द फर्स्ट वन, वर्ल्ड अटेंशन जो था वो हमें मिला, एंड यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस में इस साल्ट मार्च को कवर किया गया. इट मीन्स एवरी वन नोटिस नाउ दैट इंडिया इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द empire of Britishers, against the exploitation of Britishers, and that's why they all were together. So these all things were covered by the European and the American press. This was the first importance कि हमें वर्ल्ड लेवल पर नोटिस किया गया. नंबर 2, वुमेन took participation for the first time. अब इससे पहले क्या कंडीशन था? Our society is patriarchal. It means father is the main, males are the main part of society. But from this particular movement, females participation था, that was enhanced, और पहली बार महिलाओं ने इसमें participate किया. Third, British realized that their rule would never last forever, कि उनका जो rule है वो हमेशा नहीं चल पाएगा, and one time they need to leave the India. एक दिन उनको इंडिया छोड़ना पड़ेगा. So these were the main consequences of Salt March. क्या था? लोगों का ध्यान इस पर्टिकुलर हमारे इश्यूज़ की तरफ गया. देन वुमेन टुक पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम, फीमेल्स ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया. एंड थर्ड, ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि नाउ दे आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे हैव टू लीव इंडिया. सो दीज वर द 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साल्ट मार्च. देन कमिंग टू नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कवर्ड इन कन्वेंट इन द लंदन. लंदन में बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई. मतलब नाउ ब्रिटिशर्स वर इन द मूड ऑफ टॉकिंग विद द इंडियन लीडर्स सो दैट देयर मस्ट हैव सम सोल्यूशन. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दे कॉल्ड द प्रोमिनेंट लीडर. फर्स्ट जो हुई थी वो दैट वाज ऑन द 1st November 1930, बट इट वाज अनसक्सेसफुल, एंड द रीजन was main leaders were not there. Main prominent leaders from India were not there in the first round table conference. That's why it was unsuccessful. Then in second conference, several meetings took place between Irving and Gandhi.
इरविन और गांधी के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, एंड गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसको जाना गया. On few points they made some consent that was called Gandhi-Irwin Pact. Then he returned India and civil disobedience started. It means Gandhi-Irwin Pact was not that much successful. That's why Gandhi ji came back to India and again he started civil disobedience movement. फिर उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया. एंड न्यू विलिंगटन जो नए वायसराय बने वो भी बहुत ज़्यादा अनसिंपैथेटिक थे. आप देखिएगा कि हाउ द ब्रिटिशर्स वर चेंजिंग देयर अथॉरिटीज वन बाय वन एंड दे वर मेकिंग द डिफरेंट ऑटोनोमस पावर्स देयर. सो इन द सेम सीक्वेंस लॉर्ड वायसराय बने लॉर्ड विलिंगटन, जो इंडियन पॉलिसीज से, इंडियन लोगों से बहुत ज़्यादा अनसिंपैथेटिक वे में बिहेव कर रहे थे. अब मीनवाइल देयर वाज अ एक्ट पास्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935 प्रोविजंस को लेकर कि देयर विल बी सेपरेट प्रोविजंस, स्टेट्स विल बी देयर. सो हम वी वर मूविंग टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के लिए हम तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे. The Second World War started in 1939 and March 1940. Muslim League demanded a measure of autonomy for the Muslim majority parts of India. अब देखिए आप कि meanwhile जब हम we were struggling for the independence, meanwhile Second World War, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 में. But in 1940 what happened? There was a party of Muslims, Muslim League. उसने एक अलग डिमांड करी. उसने कहा कि नहीं भाई, हमें तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको इंडिया से सेपरेट किया जाए. तो दिस वाज अ न्यू डिमांड विच वाज मेड बाय मुस्लिम लीग एंड मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी वाज मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कहा कि इंडिया से जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उनको अलग कर दिया जाए. अब नाउ द स्ट्रगल टर्न इनटू द 3 पार्ट्स. 3 पार्ट में हो गया कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश. मतलब we were against the Britishers, but meanwhile when the Muslims raised a demand that Muslim majority area should be freed from the India, Muslim majority area को फ्री कर दिया जाए. So जो आपका जो स्ट्रगल था ये 3 लोगों के बीच में हुआ. किसके बीच में हुआ? कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश. These 3 were the main among them the struggle was going on. फिर आप देखिए क्रिप्स मिशन आया 1942 में. केम इंडिया टू नेगोशिएट विद द कांग्रेस. अब क्या चाहते थे ये? कांग्रेस से नेगोशिएट करना किस मैटर पे? कि ब्रिटेन वॉज द पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड व्हेन द वॉर इज देयर दे नीड द सपोर्ट फ्रॉम द सोल्जर साइड एंड फॉर द सेम दे नीड द सोल्जर फ्रॉम इंडिया. तो वो चाह रहे थे वार में हमें इंडियंस का सपोर्ट मिले. दैट्स वाई देयर वॉज अ टॉक बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द क्रिप्स इन क्रिप्स मिशन एंड दे जस्ट वॉन्टेड टू सपोर्ट इन द वार. वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनको वार में सपोर्ट करें, बट टॉक वॉज फेल्ड. बट टॉक फेल हो गई. अगर हम इन पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को ध्यान से देखें तो वन आफ्टर अनदर थिंग्स वर नॉट मूविंग इन द पॉजिटिव मैनर. चीज़ें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी. सो दिस वॉज द मेन थिंग विच वॉज नोटिस एट द टाइम. तो सबसे पहले हमने क्या देखा? साल्ट मार्च की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गई. फर्स्ट टाइम फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया. नंबर 2, इट टुक द अटेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड. यूरोप, अमेरिका के अखबारों में हमारे बारे में छपा. देन ब्रिटिशर्स ये जान गए कि बहुत समय तक इंडिया में नहीं रह पाएंगे. दैट वॉज 3 पर्टिकुलर थिंग्स. फिर हमने देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी हुई. पहली जो हुई 1 नवंबर 1930 को हुई, जो कि अनसक्सेसफुल हुई. वाई? बिकॉज जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे, दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट. दैट्स वाई इट वॉज फेल्ड. देन गांधी इरविन पैक्ट, ही रिटर्न इंडिया एंड इरविन पैक्ट जो है क्या था कि गांधी और इरविन के बीच में जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई, दैट वॉज बिटवीन दैम एंड देयर वॉज अ पैक्ट, बट देयर वॉज नो यूज ऑफ दैट वन. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये क्या था आपका मूवमेंट जिसमें हम जो गवर्नमेंट के जो लॉ हैं उनको डिसोबे करेंगे. सो दैट वॉज फ्रॉम द गांधी जी. नए वायसराय कौन से आए थे? विलिंगटन, द न्यू वायसराय. ही वॉज टोटली unsympathetic. Then the Government of India Act that was passed in 1935 and the Second World War which was started in 1939. So
but in 40 Muslim demanded, Muslim League की जो लोग थे, they demanded a separate nation for the Muslim majority areas, and now the struggle was between the three. कौन? Muslims, Muslim League and the Britishers. So in 1942 Cripps mission came to India to negotiate with the Congress. As Britishers wanted to support in the war. Britishers क्या करते थे, वो war में support चाहते थे, but it was failed. So these strategies were made by the Indians and the Britishers. Britishers were just wanted to get the chance to capture the whole India and to just suppress the revolt done by the Indians. But the things were not very easy because our prominent leaders were there to guide the people. जो लोगों को एक साथ लेके आ रहे थे वो लीडर, that's why we were able to win that fight. तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स थी, इन्होंने हमारे फ्रीडम मूवमेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की एफर्ट किया. एंड इनमें हम इसके बाद देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दैट वाज आल्सो कॉल्ड भारत छोड़ो आंदोलन. सो दैट वाज द एक्सट्रीम हाउ द ब्रिटिशर्स वर फोर्स टू लीव इंडिया. ब्रिटिशर्स को इंडिया लीव करने के लिए फोर्स किया गया एंड दैट मूवमेंट वाज कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट. So these were the incidences and the main hero was Gandhi, Mr. Gandhi, जिन्होंने इस अलग अलग व्यूज़ से, अलग अलग नज़रिए से, हर एटीट्यूड से उन पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को देखा एंड ही फाउंड द वेज. उन्होंने तरीके निकाले. मतलब ही वॉज दैट मच लर्नड पर्सन विद द सिंप्लिसिटी. ही जस्ट डिड द वर्क विच वॉज टू बी डन बाय द वेरी पावरफुल, बिकॉज ही वॉज पावरफुल बाय द spirituality से powerful थे and he was having the attachment toward the needy ones and the poor ones. तो उन्होंने उनको महात्मा बनाया. So this way we are going to see the role of Mahatma Gandhi in that freedom struggle. So in next part we will study about the Quit India movement, what happened at that time and what was the main role of Gandhiji in that. So do read the topic from the book and do revise the things and do note down in your notebook also, make the notes. And one more thing, don't forget to note down the notes in your notebook. That is really very much essential. So whenever we will have the live class, we will discuss more about the topic. So that's all for today. Do revise, do study daily. Thank you so much.